عالمی وبا کے قاتل وار تھم نہ سکے، ایک ہی روز میں 7 اموات، سرگودا میں 4 اور مظفرگڑھ میں 2 مریض جان سے گئے۔ رحیم یار خان میں ایک مریضہ جاں بحق ہوئی، 22 مریضوں میں کرونا کی تصدیق ہوئی۔ سرگودا میں 24 گھنٹوں کے دوران 68 افراد وائرس کا شکار، ملتان میں 12، ڈی ڈی خان اور مظفرگڑھ میں 8 مریضوں کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا۔ سرگودا کی بات کریں گے۔ سرگودا ڈویژن میں کرونا وائرس کے وار جاری ہیں۔ سرگودا میں مزید 4 افراد کرونا وائرس کے باعث جاں بحق ہو چکے ہیں۔ مزید تفصیلات سے اپڈیٹ کریں گے جنید خان۔ جنید بتائے گا۔ سرگودا ڈویژن کی بات کریں گے۔ سرگودا ڈویژن میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 333 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 68 افراد کرونا وائرس کا شکار بھی ہوئے۔ سرگودا ڈویژن میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 213 تک جا پہنچی۔ مزید تفصیلات سے اپڈیٹ کریں گے جنید خان۔ بالکل اس وقت میں موجود ہوں ڈی ایچ کیو ٹیچنگ ہسپتال کے آئسولیشن وارڈ برائے کورونا کے باہر۔ ملک بھر کی طرح سرگودا میں بھی جو کورونا کے کاری وار ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر ہم سرگودا ڈویژن کی بات کریں تو سرگودا ڈویژن میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 4 افراد جو ہیں وہ جان کی بازی کرونا وائرس کے باعث ہار گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نئے کیسز ہیں جن میں کرونا وائرس مثبت آیا ہے ان کی تعداد 68 بتائی جاتی ہے۔ سرگودا ضلع میں ڈویژن میں جو ٹوٹل اموات کی تعداد ہے وہ 213 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ ایکٹیو کیسز کی جو تعداد ہے وہ 333 ایکٹیو کیسز ہیں، جبکہ ڈی ایچ کیو ٹیچنگ ہسپتال میں جو تشویشناک مریضوں کی تعداد ہے وہ 11 ہیں جو وینٹیلیٹر پہ موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کل تعداد 213 ہے۔ بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ملتان کی بات کریں گے۔ ملتان میں بھی کورونا کے وار جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2 مریض جان کی بازی بھی ہار چکے ہیں۔ اموات کی مجموعی تعداد کی بات کریں تو 376 تک جا پہنچی ہے۔ کورونا کے مزید 12 کیسز رپورٹ ہوئے۔ نشتر ہسپتال میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 47 ہو گئی۔ 16 مریضوں کی حالت تشویشناک، جبکہ 2 وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیے گئے۔ ملتان میں بھی کورونا کے وار جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2 مریض جان کی بازی ہار گئے۔ اموات کی مجموعی تعداد 376 ہو گئی۔ کورونا کے مزید 12 کیس سامنے آئے۔ نشتر ہسپتال میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 47، 16 مریضوں کی حالت تشویشناک، 2 وینٹیلیٹر پر منتقل۔ اب مظفرگڑھ کا رخ کریں گے۔ کورونا کے وار جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مظفرگڑھ میں کورونا سے 2 مریض جاں بحق۔ مظفرگڑھ میں کورونا سے جاں بحق افراد کی تعداد 33 ہو گئی۔ اپڈیٹ کریں گے عامر ڈوگر۔ عامر بتائے گا۔ جی بالکل، جنوبی پنجاب بھر کی طرح مظفرگڑھ میں بھی کرونا وائرس کے وار جو ہیں وہ جاری ہیں، اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 2 مریض کرونا وائرس سے مظفرگڑھ میں زندگی کی بازی جو وہ ہار گئے ہیں۔ بتایا یہ جا رہا ہے محکمہ صحت کی جانب سے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مظفرگڑھ میں 8 مثبت کیسز جو رپورٹ ہوئے ہیں، اور 13 مریض ایسے ہیں جن کو کرونا وائرس کے شعبے میں مختلف اسپتالوں میں جو داخل کیا گیا ہے۔ مظفرگڑھ میں محکمہ سوئی گیس کا ملازم جو وہ کرونا وائرس سے زندگی کی بازی ہار چکا ہے، جبکہ دوسرے مریض کا تعلق جو وہ علی پور سے بتایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ صحت مظفرگڑھ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس کی دوسری لہر میں مظفرگڑھ سے تعلق رکھنے والے جاں بحق افراد کی تعداد اب جو ہے مظفرگڑھ میں 33 ہو گئی، اور مظفرگڑھ میں 920 مریض ایسے ہیں جو کہ کرونا وائرس کو شکست دے کر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ محکمہ صحت مظفرگڑھ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ 25,000 سے زائد مظفرگڑھ میں کرونا وائرس سے ٹیسٹ جو ہے وہ کیے جا چکے ہیں، جن میں مثبت کیسز آنے کی شرح جو مردوں میں زیادہ جبکہ خواتین میں کم ہے۔ محکمہ صحت مظفرگڑھ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس کی دوسری لہر جو وہ پہلی لہر سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس سلسلے میں شہریوں کو پہلے جیسی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے تاکہ کرونا وائرس سے بچا جا سکے، اور اس کرونا وائرس کو جو دوبارہ جو پہلی لہر کی طرح مظفرگڑھ میں کورونا وائرس سے متعلق آپ بتا رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ رحیم یار خان کا رخ کریں گے، جہاں پر کورونا بے قابو، کورونا وائرس کی شکار ایک مریضہ جاں بحق ہوئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 22 مریضوں میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ ضلع بھر میں 138 مریض زیر علاج، 133 مریض گھروں میں زیر علاج۔ کورونا وائرس کی دوسری لہر میں متاثرہ مریضوں کی تعداد 537 ہو گئی۔ متاثرہ مریضوں کی تعداد کے حوالے سے بتائیں تو 537 ہو چکی ہے۔ کورونا وائرس کے شکار ایک مریضہ بھی جاں بحق ہو گئی۔ گزشتہ ایک دن کی بات کریں تو ایک دن میں 22 مریضوں میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ ضلع بھر میں 138 مریض زیر علاج ہیں، 133 مریض گھروں میں زیر علاج۔ کورونا وائرس کی دوسری لہر میں متاثرہ مریضوں کی تعداد 537 تک جا پہنچی ہے۔ رحیم یار خان میں بھی کورونا اس وقت بے قابو ہو چکا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 22 مریضوں میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ ضلع بھر میں 168 مریض اس وقت زیر علاج ہے، جن میں سے 133 مریض گھروں میں زیر علاج ہیں۔ کورونا وائرس کی دوسری لہر میں متاثرہ مریضوں کی تعداد 537 تک جا پہنچی ہے۔ کورونا وائرس کے متعلق آپ کو بتائیں کہ ضلع بھر میں 138 مریض زیر علاج، 133 مریض گھروں میں زیر علاج۔ کورونا وائرس کی دوسری لہر میں متاثرہ مریضوں کی تعداد 537 ہو گئی۔
डीजी खान में कोरोना वायरस के वार जारी। BSL-3 लैब में कोरोना के 51 टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों में 8 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए। डीजी खान में एक्टिव केसेस की तादाद 156 हो गई। 145 कोरोना के मरीज घरों में आइसोलेट हैं। 11 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज। डीजी खान में कोरोना से मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 911 हो गई। अपडेट करेंगे इस हवाले से मोहसिन अल-मुल्क। मोहसिन बताएगा। कोरोना की दूसरी लहर बरकरार है और डेरा गाजी खान में आज भी नए 8 केसेस कोरोना के दरियाफ्त हुए हैं BSL-3 लैब में, जबकि कोरोना की नई किस्म के हवाले से डॉक्टर्स ने अभी तक तरदीद की है कि यहाँ से कोई ऐसा केस सामने नहीं आया। जबकि अगर मजमूई नंबर्स की बात की जाए दूसरी लहर के दौरान डेरा गाजी खान में, तो ये बढ़ते हुए 911 तक पहुंच गई है आज नए 8 केसेस के बाद। अब तक की इतलात के मुताबिक जो महकमा हेल्थ के अदाद-ओ-शुमार हैं उसके मुताबिक एक हफ्ते से खुदा न खास्ता कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। अभी तक कोरोना के हवाले से कोरोना से डेरा गाजी खान में एक हफ्ते के दौरान गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान कोई डेथ नहीं हुई है, लेकिन डेथ की रेशो जो है अब तक जो महकमा ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहसिन, आपने अपडेट किया। मुल्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर। मुल्तान के इलाके अशरफ कॉलोनी UC 31 में कोरोना के 3 केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की जानिब से मुतासरा इलाके में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला 14 जनवरी तक जारी रहेगा। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान मेडिकल स्टोर्स, लैब्स 24 घंटे खुले रहेंगे। दूध और खाने पीने की दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। दीगर दुकानें स्मार्ट लॉकडाउन के एरिया में सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर। मुल्तान के इलाके अशरफ कॉलोनी UC 31 में कोरोना के 3 केसेस सामने आए। महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की जानिब से मुतासर इलाके में स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज कर दिया गया। मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा और साबिक सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह ने कहा कि लॉन्ग मार्च आखिरी ऑप्शन होगा, इसके बाद इस्तीफे देंगे, सड़क गर्म होगी तो चोट मारेंगे। इस्लामाबाद के बाद बलूचिस्तान में मजदूरों का कत्ल हुकूमत की नाकामी है। मजीद जानते महमूद जहीर से। महमूद बताएगा उन्होंने इसके हवाले से मजीद क्या कहा। कल मरियम नवाज साहबा ने बहावलपुर में एक कामयाब रैली का इनेकाद किया, क्योंकि मेन लीडर या यूं कह लें कि मेन स्टेक होल्डर बहावलपुर में मुस्लिम लीग नून थी, तो इस हवाले से बड़ी खुशी का इजहार किया गया। मुस्लिम लीग नून के तमाम कायदीन की जानिब से खुद रोही के नाजरीन ने भी सुना और 24 के नाजरीन ने भी सुना। मरियम नवाज साहबा ने कल हमारे चैनल के जरिए खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मुबारकबाद दी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राना सनाउल्लाह साहब, जो कि साबिक वफाकी वज़ीर कानून है। आप समझते हैं कि बहावलपुर के सियासी कायदीन ने साबित कर दिया कि मुस्लिम लीग नून बहावलपुर जो है उसका दूसरा घर है? जी बिल्कुल, मैं तमाम जो यहाँ पे हमारे पार्टी के अहदेदारान हैं, हमारे MNA MPA साहबान हैं, टिकट होल्डर साहबान हैं, मैं कस्तन उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा कि कोई नाम रह ना जाए, क्योंकि सब ने बहुत खलूस के साथ जो है वो मेहनत की है। पार्टी की तंजीम ने भी और हमारे MNA MPA साहबान ने भी। तो जब फिर खलूस नीयत से टीम वर्क होता है तो फिर कोई वजह नहीं होती कि वो फिर कामयाबी से हमकिनार ना हो। तो कल का इवेंट जो है वो हर हवाले से जो हमारी तवक्कुआत थी और जो बहावलपुर में हम चाहते थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए जो है वो एक बहुत अच्छा जो है ये चीज़ बेस बने। और दूसरा ये है कि PDM की जो तहरीक है उसमें भी एक जो है वो नया रुख आए, उसमें भी एक शिद्दत और एक जो है वो बेहतरीन इजाफा हो एक फंक्शन का। तो उन तमाम हवालों से कल की रैली जो है वो हर हवाले से कामयाब रही है। जहाँ पे हम जो मैसेज देना चाहते थे वो भी गया। सर, आपके इसी मैसेज पे सवाल करना चाहूंगा कि बड़ी बातें सुनने को मिली थी कि PDM में दरारें पड़ गई, लेकिन कल की रैली ने साबित कर दिया कोई दरार नहीं है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं 31 दिसंबर गुजर गया, 31 जनवरी भी गुजर जाएगा, आप सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे, इसके बारे में क्या? तो इंशाअल्लाह ताला अगर 31 दिसंबर गुजर गया, 31 जनवरी गुजर जाएगा तो इंशाअल्लाह ये भी गुजर जाएंगे। तो सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? ये रहने वाले नहीं हैं। देखिए, ये PDM की सरबराही मीटिंग में जो फैसले होते हैं उनको हम पहले से प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते पार्टी में बेस पे कि हमारी पार्टी की ये राय है तो फिर फैसला ये होगा। लेकिन
جب تک استعفے ٹینڈر نہ ہوں اور ہمارے ممبر جو ہے وہ صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے ممبر ہوں تو پھر کسی اجلاس میں شرکت کرنا یا وہاں پہ اگر ووٹنگ ہے تو اس ووٹنگ میں حصہ لینا جو ہے وہ پھر بنیادی پالیسی کے خلاف نہیں ہے. تو اس لیے کیونکہ لاسٹ میٹنگ جو ہوئی اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ استعفوں کا آپشن لاسٹ آپشن ہوگا اور اسے اس وقت استعمال کیا جائے گا جب سڑک گرم ہو. یہ ایک سیاسی اصطلاح ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک آخری دھکے کے طور پہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ دیا جاتا ہے. تو اس لیے ہم اپنے جلسوں کے مرحلے سے ریلیز کے مرحلے سے اور آگے جو احتجاج کا اور فیصلہ کن لانگ مارچ کا ہے تو ہم یہ آپشن جو ہے وہ ان کو ایکسرسائز کریں گے اور ہمیں امید ہے کہ انہی سے جو ہے وہ ہمیں کامیابی حاصل ہو جائے گی. بہت شکریہ آپ کا. رانا ثناء اللہ صاحب کو آپ سن رہے تھے جو کہ بتا رہے تھے کہ نہ صرف اس حکومت کو مستعفی ہونا چاہیے بلکہ حکومت ہر محاذ پر ناکام ہو چکی ہے. ہمارا لاسٹ آپشن ہوگا استعفوں کا. سب لوگ سن لیں. پہلے ہم لانگ مارچ کا اعلان کریں گے. بہت شکریہ محمود ظہیر, آپ نے اپڈیٹ کیا. آٹے کے بحران کی بات کریں گے. ڈیرہ غازی خان شہر میں آٹے کا بحران سر اٹھانے لگا. ڈی جی خان کے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا نایاب ہو گیا. ڈی جی خان سے اپڈیٹ کریں گے آشر اشفاق. آشر بتائے گا شہری کیا کہتے ہیں. جی بالکل, ڈیرہ غازی خان میں ایک مرتبہ پھر آٹے کا جو بحران ہے وہ سر اٹھانے لگا ہے. ڈیرہ غازی خان کے یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر آٹا شارٹ ہو چکا ہے. گزشتہ 10 روز سے یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر آٹا میسر نہیں ہے, جس کے باعث یہاں پر جو آنے والے لوگ ہیں ان تمام کے تمام لوگوں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے. شہری کچھ یہاں پر خریداری کرنے کے لیے آئے, ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. آٹا مل رہا ہے سر یوٹیلیٹی سٹور؟ نہیں سر, 10 روز ہو گئے ہیں آٹا کسی سٹور سے بھی نہیں مل رہا. پول ڈاٹ سے لے کر نا چوک چورٹا تک جتنے سٹور ہیں, 13 بلاک والا سٹور, یہ سٹور آٹا شارٹ ہے. کیا وجہ بتاتے ہیں؟ یہ کوئی وجہ, بس آئے گا تو دیں گے, ابھی تک نہیں آیا, بس یہی جواب. جی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی آٹا مل رہا ہے؟ بھائی 2 ہفتے ہو گئے ذلیل ہو رہے ہیں, ابھی بالکل بھی نہیں آٹا مل رہا. نہ گھی مل رہا ہے, گھی بھی اور اس کے ساتھ دال دے رہے ہیں, کچھ اور چیزیں دے رہے ہیں بھائی, اس کے لیے آٹا دے رہے ہیں, نہیں تو وہ گھی دے رہے ہیں, نہیں تو گھی دے نہیں بالکل بھی. دشواری ہو رہی ہے؟ دشوار اتنی ہو رہی ہے, گھر میں آٹا نہیں ہے بھائی. 80 روپے کلو آٹا کہاں سے لے کے آئے غریب بندہ بھائی. جی بالکل, آٹے کی شارٹیج ہے, یہاں پر لوگ پریشان ہیں, مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بہت شکریہ آشر, آپ نے اپڈیٹ کیا. گیس کی لوڈ شیڈنگ کی بات کریں گے. خانوان میں سوئی گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ اس وقت جاری ہے. شہری سوئی گیس نہ آنے پر گیس سلنڈر استعمال کرنے پر مجبور ہے. ندیم مغل اپڈیٹ کریں گے. ایک جانب تو گھروں میں گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے, تو دوسری جانب ایل پی جی کی گیس کی بڑھتی قیمتوں نے بھی شہریوں کو مزید پریشان کر دیا ہے. اس پر مزید ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. جی بتائیے گا کہ گھروں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے, گیس کی, ایل پی جی کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں, تو کیا کہیں گے سر؟ السلام علیکم. جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جی ہم غریب لوگ ہیں اور گیس آتی نہیں ہے کام کرنے کے لیے, سلنڈر بھرنے کے لیے. پہلے ہم 120 روپے کلو خریدتے ہیں, پھر 140 روپے, بلیک ہو جاتی ہے, آتی نہیں ہے. اتنے تنگ ہیں کہ بھئی بتا نہیں سکتے آپ کو. اور اسی طرح لوڈ شیڈنگ ہے, لوڈ شیڈنگ میں بھی بل اتنے زیادہ دیتے ہیں, بجلی آتی نہیں ہے. ہم بہت پریشان ہیں اس کے پیچھے. تو حکومت سے ہماری یہ درخواست ہے کہ ایک تو ہمیں گیس فراہم کی جائے اور جو ایل پی جی کی جو سلنڈر کی قیمتیں ہیں اسے نیچے کیا جائے, کم کیا جائے. یہ ایل پی جی قیمتیں کم کیے جائیں. آپ نے اپڈیٹ کیا, آپ کا شکریہ. میاں والی پپلا کندیا تل کینال روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار. شہریوں نے کہا کہ روڈ کی خستہ کے باعث کئی حادثات ہو چکے ہیں. میاں والی سے اپڈیٹ کریں گے اختر مجاز. جی بالکل, میاں والی, کندیاں, چشمہ براج, ڈی آئی خان اور دیگر کئی علاقہ جات کو جانے والا روڈ پپلا تھال کینال کے کنارے جو روڈ موجود ہے اس کی حالت انتہائی ابتر ہو چکی ہے. جگہ جگہ روڈ پر گڑھے پڑے ہوئے ہیں اور ان گڑھوں کی وجہ سے, روڈ کی خستہ حالی کی وجہ سے یہاں پہ متعدد حادثات ہو چکے ہیں جن میں لوگوں کا قیمتی جانوں کا ضیاع ہو چکا ہے, لوگوں کے مال کا ضیاع ہو چکا ہے. کچھ گزرنے والے جو مسافر ہیں ان سے بات کرتے ہیں, کیا کہیں گے اس حوالے سے. کیا کہیں گے جناب, آپ جہاں سے گزر رہے ہیں روڈ کی کیا صورت ہے, کیا کہتے ہیں؟ روڈ کی بہت خراب حالت ہے اور ٹائم بہت ضائع ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں. کوئی اس کو دیکھتا نہیں ہے, آتے ہیں جاتے ہیں سب لوگ, کسی کو اس کا خیال نہیں ہے بالکل. اور بہت زیادہ یہ روڈ خراب ہے, جگہ جگہ پہ جم بنے ہوئے ہیں, ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں کیونکہ موٹر سائیکل والا جو جمپ جاتا ہے, گاڑی جا رہی ہے, گاڑی میں لگ جاتے ہیں. اسی طرح نہر ساتھ ہے, آج کل دھندے ہیں, ان کی وجہ سے نہر میں آدمی گر سکتا ہے.
जी बिल्कुल बड़ी खूबसूरत ठीक बात है, ये- आपने अपडेट किया। अख्तर, आपका शुक्रिया। नून लीग के नायब सदर मरियम नवाज नाश्ते के लिए डॉक्टर राना तारिक के घर पहुंच चुकी हैं। राना तारिक और साबिक वफाकी वजीर बलीग रहमान की फैमिली ने उनका इस्तकबाल किया है। ये फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि मरियम नवाज की गाड़ी पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज नाश्ते के लिए डॉक्टर राना तारिक के घर इस वक्त मौजूद है। राना तारिक और साबिक वफाकी वजीर बलीग रहमान की फैमिली ने उनका इस्तकबाल किया है। मुस्लिम लीग नवाज की नायब सदर मरियम नवाज नाश्ते के लिए डॉक्टर राना तारिक के घर पहुंच गए। राना तारिक और साबिक वफाकी वजीर बलीग रहमान की फैमिली ने उनका इस्तकबाल किया। इसी पर बात करेंगे, महमूद जहीर हमारे साथ मौजूद है। जी महमूद। जी बिल्कुल, मरियम नवाज साहबा जो है वो भावलपुर के इन दिनों दौरा पर हैं पीडीएम की रैली के हवाले से, और गुज़श्ता रात कामयाब रैली के बाद आज रात गुज़श्ता रात गुजरी है उसमें फौज मजीद साहब जो मुस्लिम लीग नून पंजाब के नायब सदर उनके घर क्याम के बाद अब नाश्ता के लिए डॉक्टर राना तारिक जो कि मुस्लिम लीग नून भावलपुर के न सिर्फ रहना है बल्कि टिकट होल्डर भी है, क्योंकि वो इस चीज से हार गए थे, उनके घर नाश्ता के लिए पहुंच गई है, जहां पर उनकी फैमिली ने उनका इस्तकबाल किया है और फैमिली ही मरियम नवाज का इस्तकबाल किया गया है। बहुत शुक्रिया महमूद जहीर, आपने अपडेट किया। मुल्तान के इलाके अली टाउन से 1.5 साल के बाद सीवरेज नमूनों के पोलियो रिजल्ट नेगेटिव आ गए। अपडेट करेंगे इस हवाले से बिलाल न्याजी। जी बिल्कुल, पोलियो की बात करें तो जनूबी पंजाब पर पोलियो का खतरा मंडला रहा है, लेकिन मुल्तान के लिए इस हवाले से अच्छी खबर आई है कि जो अली टाउन में सीवरेज के जो नमूने लिए गए थे उस हवाले से जो सैंपल पॉजिटिव आए थे वो अब नेगेटिव हो गए। इस हवाले से महकमा सेहत की टीमें मुसलसल उन इलाकों में विजिट कर रही थी, पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे थे, तो इस हवाले से जो अब नई रिपोर्ट आई है उसके सामने उसके मुताबिक अली टाउन के जो सैंपल आए हैं वो नेगेटिव आए हैं। उसके साथ साथ मुल्तान में 11 जनवरी से इंसदाद पोलियो मुहिम का भी आगाज किया जा रहा है, उस सवाल से तैयारियां जारी हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीईओ हेल्थ डॉक्टर रशीद मलिक मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। सर बताइएगा, अली टाउन एक बार फिर नेगेटिव आ गया, अच्छी खबर है। हमने देखा कि आसपास के जिला में पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, कल भावलपुर का फिर पॉजिटिव आया, तो इस हवाले से क्या समझते हैं कि किस तरह वर्किंग जारी है, नई कैंपेन कितना इफेक्ट डालेगी? मेरी टीम ने, मैं अपनी टीम को भी मुबारकबाद दूंगा, जिसमें मेरे तीनों डीएचओ साहिबान हैं, मेरे डीडीएचओ साहिबान हैं, मेरे डीएसवी एएसवी हेल्थ वर्कर्स, हेल्थ सुपरवाइजर्स और इसके अलावा दीगर अमला जो हेल्थ का है उन्होंने मेरे साथ तामुन किया, क्योंकि ये एक टीम वर्क है। मैं इस टीम का लीडर हूं, लेकिन ये उसी सूरत में हो सकता है कि जब ये मेरी टीम मेरे साथ जो है वो मेहनत करे, और अल्लाह ताला ने और उन्होंने वाकई मेहनत की है। मैं आपके चैनल की वसातत से उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह वो इस जो है एजाज़ को बरकरार रखेंगे। उन्होंने मेहनत की, मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो 1.5 साल से अली टाउन जो पॉजिटिव आ रहा था एनवायरमेंटल सैंपल पोलियो का, वो नेगेटिव हो गया है, और उसमें जो है इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको हम जो है नेगेटिव ही रखें। और मैं अपनी टीमों को दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बराए मेहरबानी रूटीन इम्यूनाइजेशन पर, मैं अपनी वैक्सीनेशन ब्रांच को, और इसके अलावा जो पोलियो के ड्रॉप्स हैं कि जो ही बच्चा पैदा होता है या उनको रिपोर्ट होता है कि फलां बच्चा गेस्ट आया है या कहीं वो उनको मिलता है जो किसी हॉस्पिटल में, तो उसको वो कतरे पिला दें ताकि हम इस मुजी मर से जान छुड़ा सकें। जो नई कैंपेन शुरू हुई है मर से जान छुड़ाई जा सके। बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने अपडेट की। पंजाब भर के स्कूलों में अर्ली चाइल्ड के एजुकेशन किताबों की तकसीम का आगाज हो गया। ईसीई किताबें बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक होंगी, जो इसको मद्देनजर रखते हुए तैयार की गई हैं। एसीएल किताबें खुसूसी तौर पर छोटी उम्र के बच्चों के लिए तैयार की गई हैं। सूबे भर के तमाम तलबा को इब्तदाई तालीम के लिए किताबें दी जाएंगी। दुनियापुर और गिरदुनवा में धुंध की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सर्दी की शिद्दत के साथ ही लंडे बाजार की रौनकें बढ़ गई। अपडेट करेंगे याकूब ताहिर, याकूब बताएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त दुनियापुर में मौजूद हूँ। सर्दी की आमद के साथ ही लंडा बाजार की रौनकें जो हैं वो भी अपने अरूज पर पहुँच चुकी हैं। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है उसी तरह लंडा बाजार में भी रश बढ़ता जा रहा है। मजदूर और मसवत तबके के लोगों ने लंडा बाजार का रुख किया हुआ है ताकि इस सर्दी से बचा जा सके, लेकिन यहाँ पर भी महंगाई इतनी है कि यहाँ पर खरीदार भी महंगाई का रोना रोता दिखाई देता है। और जिस वक्त लंडे बाजार वालों से बात करते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि पीछे से महंगाई है। इस वक्त जो है एक शख्स मेरे साथ, मजदूर मेरे साथ मौजूद है, जो कि यहाँ पर अपना और अपने बच्चों के लिए कोई कोट वगैरह खरीदने के लिए, उनसे जानते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। और जी लंडा खरीदने के लिए आए हैं, लेकिन महंगाई इतनी है कि हम क्या बताएं, हमारी पहुंच से बहुत दूर हो गया है। 100 रुपये वाली चीज़ 700 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये, 500 रुपये। गरीब कहाँ जाए?
अमीरों ने भी ये लंडा खरीद के ना वो अपने घर ले गए हैं, स्टॉक लगा लिए, पता नहीं क्या किया है। तो हमारी पहुंच से तो बहुत दूर हो गया जी ये। अब तो हम जो है ना सर्दी में ही मरेंगे और कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है गरीब आदमी कहाँ जाए, यहाँ पर जैसे अमीर लोग आते हैं वो भी यहाँ पे लंडा खरीदते हुए दिखाई देते हैं। लंडा भी पहुंच से दूर हो चुका है। बहुत शुक्रिया याकूब ताहिर, आपने अपडेट किया। जनूबी पंजाब के सियाहती मकाम फोर्ट मनरू में खून जमा देने वाली सर्दी है। ठंडी हवाएं चलने और गहरे स्याह बादलों की वजह से फोर्ट मनरू का मौसम इंतहाई सर्द हो चुका है। इसी पर बात करेंगे अली मूसा रजा से। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब के सियाती मकाम फोर्ट मनरू में जो है खून जमा देने वाली सर्दी है। यही वजह है कि कबायली लोग जो हैं घरों में आग जलाकर जो है खुद को गर्म रखे हुए हैं। बैर सर्द हवा में खड़ा होना भी महाल हो चुका है। यहाँ पर शदीद सर्दी है। यहाँ पर आग पर तो बंदा बैठ सकता है, मगर जो फोर्ट मनरू में सर्द हवाएं चल रही हैं और गहरे स्याह बादलों का राज है, वहाँ पर फोर्ट मनरू की सैर व तफरी जो करना इंतहाई महाल है। मेरे साथ कुछ कबायली लोग मौजूद हैं। दादा सर्दी है? हाँ सर्दी है। बहु थोड़ी है? बहु है। तुझा क्या सर्दी? बहुत सर्दी है सर। तो असा बाल के ता बैठे घर साढ़े बाल बच्चे तो घर हैं। अस मजदूरी के लिए वैसे था है ये बात है, बैठे गुजारा करने कोई रश का है नहीं, बस गुजारा है, गुर्बत है, मजदूरी तो करना है ना। आज बिल्कुल शदीद यहाँ पर सर्दी पड़ी हुई है। है। आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। कोट अदू का रुख करेंगे बस्ती नकद आबाद के सीवरेज सिस्टम नाकारा सीवरेज सिस्टम के बायस पानी के तालाब बन गए। अपडेट करेंगे तैमूर अथर। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 14B बस्ती नकदाबाद। यहाँ की ये सूरत हाल है कि अरसा 30 साल से यहाँ का सेवरेज सिस्टम नकारा हो चुका है। सेवरेज सिस्टम नकारा होने की वजह से जो यहाँ का रिहायशी हैं वो काफ़ी परेशान है। सेवरेज का पानी खाली प्लाटों में जमा किया जा रहा है, पीटर लगाया हुआ है, जिसकी वजह से जो लोगों के घर हैं उनकी दीवारों को शदीद नुकसान हो रहा है। ये जिस सड़क पे हम मौजूद हैं ये गर्ल्स कॉलेज को जाने वाली सड़क, और ये भी अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। इस वक्त ये सूरत हाल है कि सड़क के ऊपर भी पानी जमा हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाले जो रिहायशी है वो काफ़ी परेशान है। सेवरेज के पानी की वजह से बदबू फैल रही है, लोग काफ़ी परेशान हैं, बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। आप मुझे बताइएगा कितने अरसे से इसी तरह गंदे पानी में जिंदगी गुजार रहे हैं, सड़क टूट का शिकार है, क्या कहेंगे? 20 से 25 साल हो गए हैं सर, इसमें बड़े परेशान हैं, सारे मोहल्लेदार परेशान हैं सर। गंदा पानी है, ये पीटर लगा हुआ है, कभी चलाते हैं कभी नहीं चलाते हैं, तो सारा घरों में पानी जाता है सर। इसकी वजह से बच्चे बीमार हैं, बीमारियां फैल रही हैं सर। आप मुझे बताइएगा सड़क की वजह से लोग परेशान हैं। बहुत शुक्रिया तैमूर अतर, आपने अपडेट किया। लियाकतपुर का रुख करेंगे, वहां पर रेलवे एरिया भी कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है। लियाकतपुर से अपडेट करेंगे हसन महमूद। देखिए, इस टाइम मैं रेलवे स्टेशन के पे करीब मौजूद हूँ। यहाँ पे रेलवे स्टेशन का जो एरिया है, जो पटड़ियों के करीब का एरिया है, म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से जो है यहाँ पे कचरा कुंडी में बदल दिया गया है। अगर मेरे कैमरामैन यहाँ पे दिखाएं तो अभी एक रिक्शा जो है ये भर के आया हुआ है कचरे से, जिसे जो अहलकार हैं, जो ये गाड़ी लेके आए हुए अहलकार हैं, उनकी तरफ से जो है यहाँ पे कचरा डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ताफुन भरा माहौल भी है और गंदगी के यहाँ पे जो है अंबार भी लगे हुए हैं। दूसरी जानिब भी देखा जा सकता है कि कचरे से जो है एक ट्राली यहाँ पे भरी जा रही है। इन्हीं से हम जानते हैं कि ये रसे सो तुसा कि आखिर ये कचरा कित्थू कर चाहते आंदे पे वे इतना कचरे का इतना अंबार लगा पे क्या इतनी साड़ीता में दे कचरा वगैरह सर नहीं सटन लगा, मैं कचरा सटन नहीं आया मैं सर। तो ये किस लिए यहाँ पे लेके आए हुए हैं आप? सर तो साइड से करना सर, मैं इधर थी। यहाँ से कौन सा रास्ता जाता है ये तो बता दें। मैं तो निकल जाऊंगा सर, कोई मसला नहीं। या मेन रोड से आप जा रहे नहीं है, यहाँ से कौन सा रास्ता है जो आप जाएंगे ये तो बता दें जरा। जी, इनके पास जो है हमारे सवाल का जवाब ही नहीं है। इनका ये बताना है कि यहाँ से ये रिक्शा निकालने के लिए आए हैं, मगर अगर कैमरामैन यहाँ पे दिखाएं तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि यहाँ पे कोई ऐसा रास्ता मौजूद नहीं है जहाँ से ये कचरा जो है यहाँ से निकाल के जाएं। एक शहरी भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। ये बताइएगा कचरा यहीं पे डाल दिया जाता है क्या? सर ये अस्सलाम वालेकुम, सारी बात ये यूँ है कि ये इनका जगह एक जगह पर बनाई हुई है, सेटअप बनाया है, ये वहीं नहीं गंद नहीं डालते। हमारे ये सामने दुकानें हैं, कैमरामैन आपको दिखा सकता है, वो हमारे किराना है, साथ होटल भी है, मक्के शक्के वहाँ गंद जा रहे। इसी गंद की वजह से गंदगी बहुत है वहाँ पर, बात गंदे ये वगैरह छिटे वगैरह फेंक जाते हैं, इसी की वजह से बदबू रह जाती है। लिहाजा इनका जगह बल्दिया एक जगह बना है, ये रश्के वाले यहाँ जान के आते हैं, इधर ही डालते हैं जानबूझ। इनका एक जगह वहाँ पर बनाई हुई है, ये जानबूझ कर वहाँ नहीं जाते, लिहाजा ये रास्ता नज़दीक लगता है, यही ये डाल रहे हैं।
जी बिल्कुल, इनकी तरफ से जो है यही बताया जा रहा है। जो शहरी हैं, जो यहाँ के सरेआम कचरे के दुकानदार ढेर हैं। मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना।